Hi, good morning, viewers. How are you? Today is 6th of March, Friday. So, today I'm heading towards Pantnagar, where I'll meet some consultants, MEP consultants, and I'm at Sector 59, Noida. So, this journey is going to be for 4 hours and 6 minutes and 250 kilometers from now. This is different from my house, and now I have covered some distance, so it's 250 kilometers from now. So today we will talk about, during the journey I will walk you through the locations, places, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे जो ईरान एंड इसराइल और यूएस के बीच में फाइट चल रही है. दिस whole Middle East is impacted due to this, and I'm very much concerned about. My sister resides in Abu Dhabi along with her husband. My brother-in-law is in oil and gas field, so they have been hearing it for last 6-7 days. Though they are safe, but I'm concerned about their safety, and this is not at all acceptable. Being, while you think it from an individual point of view, that fights, these are all shit. Normally, being Indian, I know हमारी safety concern है. I respect our armies, our Thal Sena, Jal Sena and Vayu Sena. I respect a lot, but I personally do not like wars. क्यों? क्योंकि जो war लड़ते हैं, that it gives you that dopamine. But अगर एक भी कोई किसी घर का चिराग जाता है, किसी घर का बेटा बेटी कुछ शहीद होते हैं, तो उस घर के लिए वो एक void क्रिएट हो जाती है, और वो void कोई भर नहीं सकता. एक पैट्रियटिज्म, ठीक है, हम देशभक्त हैं, हमारे देश के ऊपर कोई आंख नहीं उठा सकता, so and so. But यार, wars are not good. We are in a situation, we are in globally, what I understand, globally every country should focus towards development, not towards these sort of developments. Arranging developing nuclear powers, nuclear artilleries, arranging missiles, drones, and all sort of this stuff. Just give me a moment. Hi, welcome back, guys. So wars are not good. ये मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है. इन दिस एज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड थ्रू लाइफ के किस तरीके की डेवलपमेंट, किस तरीके का अपना, कुछ लोग बेवकूफ़ हैं, ड्राइविंग करते हुए बिल्कुल भी नहीं देखते. एनीवे, तो किस तरीके की डेवलपमेंट हमें चाहिए, किस तरीके का एक फोकस होना चाहिए कंट्री का, एक देश की गवर्नमेंट का, उस देश के लोगों का स्पेसिफिकली. तो दिस इज़ समथिंग रियली अनएक्सेप्टेबल, आई वुड से. और के अब हम पहुंच चुके हैं टोल नंबर 2, ब्रज घाट टोल प्लाजा. छजरासी टोल जो अपना पड़ता है लखवा क्रॉस करके, लखवा से पहले ही छजरासी टोल, और ये है ब्रज घाट के बाद का टोल. आपका नाम क्या है? आपका नाम नाम क्या है आपका? नाम नाम तो बताओ अपना. अरे नाम तो बताओ भाई. अभी मैं हूँ रुद्रपुर में. तो ये भाई जो दिखाया था वीडियो में, महाराष्ट्र से बता रहे हैं, वाशी से. बीवी बच्चा साथ था. मैंने कहा चल ठीक है, और तो मैं वीडियो बना रहा था, उसको थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लगा, पर मैंने फिर भी जो मेरे से बन पड़ा मैंने दे दिया. बाकी फ्रॉड है नहीं है, गॉड नोज. ये अपना रूम, ये टीवी चल रहा है, ये मिरर, ये अलमीरा है. वो नहीं है प्रॉपर पूरी, बट हाँ, वॉशरूम, shower area, commode. Let it keep open. What is this? I don't know. But हाँ, room अच्छा है. Lemon Park. I would definitely I recommend this hotel. Rooms are neat and tidy. Let's see what's outside. It's blackout already outside. So there's another hotel, Fortune, and yeah, see. Hi. One more benefit staying in some good quality hotels. See my shoes. These are completely dirty. Now look at these. I got this disposable slippers. Hi guys, good morning. तो हमने हल्द्वानी से अपनी नीम करोली बाबा की यात्रा शुरू कर दी है अपनी गाड़ी में, और समय है 8:51, किलोमीटर 23 रह गए, और 1 घंटा 14 मिनट का टाइम ही बता रहा है. ट्रैफिक है, लाइट, इतना हैवी ट्रैफिक नहीं है. पहले मैं कई बार आ चुका हूँ, तो ट्रैफिक रहता है. बाकी आप सफ़र देख सकते हैं कितना मनोरंजक है. पहाड़, घूमते रास्ते, बहुत ही अद्भुत. I mean,
cannot calculate or why I'm so much attached with this place, कैंची धाम. I have been here twice. This is my third trip. और अच्छा है यार, एक्सपीरियंस ये बहुत अच्छा है. बाकी वीडियो में आगे बने रहिए, आपको डिस्कस करते रहेंगे. फ्रेंड्स, वेलकम बैक. ट्रैफिक बढ़ चुका है और हम तकरीबन 10-11 किलोमीटर दूर हैं कैंची धाम से, बट अभी ट्रैफिक थोड़ा सा ज़्यादा है. लोग, अब मुझे डर लग रहा है क्योंकि भवाली में नॉर्मली बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है. वहाँ पे कई घंटों का जाम लग जाता है. वहाँ से कोई मेरे को स्कूटी या बाइक अरेंज करनी पड़ेगी. एक और ख़ास बात कि जब आप नीम करोली जाते हैं तो आप कोई भी प्रसाद वहाँ अंदर नहीं हो सकते. वहाँ एक ही प्रसाद चढ़ता है, कच्चे चने का. आप कच्चे चने ले जाइए और वो वहाँ पे जो उनका डिपार्टमेंट है उसमें जमा करा दीजिए. बाकी आगे बने रहिए. हाय फ्रेंड्स, ये मैंने कैमरा अपना माउंट कर दिया है तो मैं आपसे बातें भी कर सकूँ और ड्राइव भी कर सकूँ. तो मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, मैं साइड में बैठा हुआ हूँ. तो बट ये मैंने कैमरा माउंट कर दिया है, कब तक इसको पकड़ के रखेंगे. और ट्रैफिक का हाल आप देख ही रहे हैं. ये कोई शायद वीआईपी मूवमेंट है क्योंकि काफ़ी लंबी एम्बुलेंस वगैरह और एसडीएम श्री कैंची धाम, ये अभी एक वीआईपी मूवमेंट हुई है ताकि इसी वजह से गाड़ियाँ रोक दी थी. और हम रहे हैं 10 किलोमीटर दूर, बट 48 मिनट का रास्ता है. इट्स स्केरी. कैसे करेंगे समझ नहीं आ रहा. देखते हैं, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा. और दर्शन करने तो जाना ही है मेरे को, इसमें कोई दो राय नहीं है. हाँ, ये कोई आज मूवमेंट है वीआईपी. देख रहे हैं यार, गाड़ी काफ़ी स्लो हो गई है, इसी वजह से 48 मिनट दिखा रहा है. और देयर इज़ अ प्लेस भोवाली, तो वहाँ से एक रास्ता ऊपर की तरफ चला जाता है, एक नीचे कैंची धाम की तरफ जाएगा. वो बेसिकली वो जो ट्रायंगल है, वो जो पॉइंट है वहाँ से जाम शुरू हो जाता है. और ये बाइक गोरखा, आई लव दिस कार. ये काफ़ी अच्छी कार है. अगर मेरे को बाय करनी हो थार और गोरखा तो आई विल बाय 5 डोर्स गोरखा फोर्स की. एनीवे, तो कैंची धाम के बारे में सभी जानते हैं, बहुत फेमस है और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ यहाँ आ चुके हैं. और इवन पूरे उत्तराखंड ही अपने आप में देवभूमि है. हिमाचल देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है. और यहाँ वो फील आती है, यहाँ वो आपके अंदर वो भावना होती है कि यहाँ पे जब आप रुकते हैं 1-2 दिन तो आपका मन शांत, दिल शांत. आपका दिल शांत इन द सेंस कि सुकून, शांत नहीं होना चाहिए दिल. तो ये मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है. जैसे मैं हिमाचल में रहा हूँ बहुत टाइम, तो वहाँ पे भी मेरे को पहाड़ पसंद भी हैं, पहाड़ी एरिया. तो फिर से जाम में लग गया. गैस मैं अभी फ़िलहाल पॉज कर रहा हूँ वीडियो को. वो थोड़ी ही देर का जाम था, अब फिर से खुल गया है. तो 9.5 किलोमीटर दूर हैं अभी भी हम, और ट्रैफिक की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है. गाड़ी तकरीबन 20 या 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है. बाकी आने वाले आई थिंक ये लोग अपना दर्शन करके आ चुके हैं, क्योंकि आने वाले की तरफ भी आती हुई गाड़ियों की भी काफ़ी अच्छी भीड़ है. आप मेरे को 1 मिनट दीजिए. फिर से जाम में फंस गए. ये हम हैं भवाली और ये जाम दिखा रहा है करीबन 47 मिनट का. आप देखिए पहाड़. बाइक का अरेंजमेंट कैसे करा जाए, पता नहीं कितनी देर में निकलेंगे. लेट हो गया हूँ मैं, मेरे को सुबह 6 बजे निकल लेना चाहिए था. दोस्तों, पिछला जो भवाली का हेयर पिन टर्न था, वहाँ से यहाँ हमने ये शहर में एंटर किया है. छोटा सा ये एक पहाड़ के ऊपर बसा हुआ, और ये एक तिराहा है जहाँ लेफ्ट साइड से भी लोग आते हैं और हमें राइट साइड में जाना है टूवर्ड्स कैंची धाम. शॉप्स ओपनिंग मतलब मॉर्निंग भी है, संडे है, तो थोड़ी सी भीड़ है कंपेरेटिवली. थोड़ी सी नहीं, भीड़ अच्छी खासी है. ये नैनीताल कैंची धाम मुक्तेश्वर. आप ये सामने चौक है. थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली है. दूसरी तरफ गाड़ियों की लाइन आप देख ही रहे हैं, कितनी लंबी कतार है. ये वो लोग हैं जो दर्शन करके आ चुके हैं या इस रास्ते से आ रहे हैं. और अभी हम पहुंचेंगे कुछ और देर में. बाबा नीम करोली के चरणों में अपनी अरदास लगाएंगे और दर्शन करेंगे. गाड़ी खड़ी कर दी है. अभी 1.5 किलोमीटर दूर है सिर्फ, तो हम पैदल जाएंगे यहाँ से. यहीं से वो मंदिर नीचे दिख जाएगा. यहाँ से आप देख रहे हो नीचे, वो जो नीचे भवन दिख रहा है, बाबा नीम करोली का मंदिर. और ये बेस्ट है. देखिए ये है मंदिर. ये हमने एक गाड़ी अपनी रोड पे खड़ी कर दी साइड में,
और यहाँ से पैदल ये पगडंडी सी है, यहाँ से ही हम जा रहे हैं। काफ़ी स्टीप चढ़ाई है, उतराई है, आते हुए पता लगेगा। चलो देखते हैं जो भी है। ये जगह जो है नीम करोली बाबा धाम, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मुझे बहुत ही ज़्यादा खींचती है अपनी तरफ और मन करता है यहाँ बार आने का, पता नहीं क्यों। बट हाँ, तो मैं भी 1 महीने पहले भी आया था और ये मेरा दूसरा रूट चक्कर है। आ जा रहे हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये लगा लेना, ये हाथ में ऐसे, ये बुखार नहीं आएगा 3 साल तक। ये भाई ये जो रास्ता था इससे हमने कई किलोमीटर कवर कर दिए हैं और फाइनली हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। मेन रोड से हटके ये समय बचाने के लिए बहुत बढ़िया है और लोग काफ़ी हैं यहाँ पे। चढ़ाई के टाइम देखेंगे क्या होगा, क्योंकि मुझे फोबिया, बट हाँ इस बार मेरे को विश्वास है कि आई विल डू इट फाइनली। बाबा सही कह रहे, चढ़ाई तो अपना मोबाइल को जेब से बाहर न निकालें, फोन को जेब में, बरसात को हाथ में। आते हैं, भीड़ बहुत भीड़ है। मैंने भी थोड़ी सी थकान तो हुई है, लोगों को रोकना पड़ता है। ये मंदिर, ये भीड़ आप देख ही रहे हो। ये यहाँ पे जूताघर है, निशुल्क जूताघर। अब चलते हैं मिनी मार्ट, जहाँ से हमें लेने हैं चने जो कि प्रसाद में चढ़ते हैं। ले लिया है। ये ना री रूट हुआ है कैंची धाम से ही कोई 4-5 किलोमीटर ऊपर की तरफ। जब भवाली आते हैं तो एक नया रास्ता बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी इस पर इतना ट्रैफिक भी नहीं है। मजे की बात ये है कि ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है और ये पूरा भवाली एरिया पास कर देगा। जैसे एक अंकल मिले थे, उन्होंने बताया कि भाई ये नैनीताल होते हुए काला डूंगी होते हुए जाएगा। तो देखते हैं, अभी तक तो ट्रैफिक बिल्कुल ज़ीरो है। रास्ता भी मस्त है, नया कच्चा आई मीन टूटा फूटा नहीं है रास्ता भी बिल्कुल बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है। पहाड़ों में नॉर्मली अच्छी होती है, उत्तराखंड हिमाचल में रोड्स काफ़ी अच्छे मेंटेन करती है गवर्नमेंट। अरे वाह, तो जुड़े रहते हैं आपके साथ अभी और भी चीज़। हाय फ्रेंड्स, तो नीम करोली बाबा के दर्शन बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन हुए। और मैं ज़्यादा वीडियो वहाँ बना नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे अपना फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। आप भी ये गलती ना करें। दूर से आप अपने फ़ोटोज़ वगैरह मंदिर के साथ बाहर से तकरीबन 50 गज के दायरे से बाहर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। बाकी दर्शन हो चुके हैं, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। जैसे मैंने बताया था चने का, तो मैंने चने का एक अपना प्रसाद लेकर और वो दे दिया। थक भी गया था काफ़ी, जो पैदल यात्रा, पैदल जो आपको दिखाया था पैदल रास्ता, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। टाइम की बचत करने के लिए मैं पैदल निकल गया था। आते हुए बड़ी हिम्मत नहीं हुई कि चढ़ाई चढ़ी जाए क्योंकि थक गया है। तो इसलिए एक बस में 20 रुपये किराया देकर जहाँ पर गाड़ी खड़ी थी वहाँ तक आ गए। और बाकी बहुत अच्छा है अब तक का सफ़र। दर्शन बहुत बढ़िया हुए बाबा के और अभी और भी चीज़ों पर अपडेट देता रहूँगा आपको। और एक और चीज़ कि मेरी सिस्टर जो दुबई थी आज सुबह, वो 9 बजे लैंड कर चुकी है इंडिया। काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव सिचुएशन है दुबई में, स्पेसिफिकली यूएई में और कतर, कुवैत, सऊदी, यहाँ काफ़ी सेंसिटिव सिचुएशन है। ये एक बेवकूफ़ गधे की वजह से सारा, मतलब नॉट होल वर्ल्ड, मिडिल ईस्ट स्पेसिफिकली वेस्ट एशिया वर्ल्ड वार की तरफ जा रहा है। तो दिस इज़ रियली शेमफुल कि इतने अच्छे कंट्रीज़ होते हुए कि इंडिया, आई मीन इफ़ आई कंपेयर इंडिया एंड यूएस, why India is not on same pace like Japan, US, China। प्लीज़ मेरे को माफ़ करना अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे। हमारे लोग ना, हमारी जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो बिल्कुल इलॉजिकल हैं। यूएस को यूएस बनाने वाले उसकी आम जनता है, जो वहाँ लोग रहते हैं वो हैं। जापान को जापान बनाने वाले वो आम लोग हैं। उनकी पॉलिटिशियन ये सब आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं किसी एक पार्टी का फेवर नहीं करता, ना मेरे को ये पार्टीबाजी अच्छी भी लगती है। बट जो इसका कंक्लूज़न है ना, दैट इज़ फॉर श्योर, आई कैन से इट विद गारंटी कि वहाँ के लोग हैं, जापान के लोग हैं, चाइना के लोग हैं, यूएस के लोग हैं, जो भी कंट्री आज टॉप पे है, अच्छा इकोनॉमी जिसकी बढ़िया है, सब चीज़ कंट्रोल्ड है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट है, ओनली बिकॉज ऑफ
देयर पीपल, नॉट ड्यू टू द गवर्नमेंट। को उतना कमज़ोर हो जाना पड़ेगा अगर सारे ही लोग लॉजिकल थिंकिंग के साथ क्वेश्चन करने लग जाएं, पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान दें, तो हिंदुस्तान हमारा बहुत आगे जा सकता है। अभी बात कर रहे हैं हम अपना इसकी, ये जो लड़ाई चल रही है, मतलब इन्होंने इतना पैसा बर्बाद कर लिया। ये इस टाइम से तकरीबन 5-6 साल पीछे चले गए हैं सभी कंट्री जो भी इन्वॉल्व हैं। यूएस के पास था एक सेविंग्स थी, सेविंग्स आर्म्स की, सेविंग ऑयल की, सेविंग पैसे की, जो भी चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं तो कंज्यूम होंगी, यू कैन कैलकुलेट इट। और इसी तरीके से बाकी सभी कंट्री, वो तो जो बर्बादी होनी थी हो चुकी है, और अब कुछ भी नहीं कहा सकता कि ये बर्बादी कब तक रहेगी। तो बड़ा डिस्टर्बिंग है ये, बट आई एम वेरी मच हैप्पी टुडे कि मेरी सिस्टर वापस आ गई है अलॉन्ग विद हर हस्बैंड और 3 बच्चे। और बाकी आपसे बातें करते रहेंगे सफ़र के दौरान। अभी के लिए मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, सिर्फ पानी पिया था, तो मैं अभी कुछ खाने के लिए रुकूंगा कहीं पे। हाँ, खाने पे यहाँ से जहाँ भवाली से, और आप अगर जब पैदल जाते हैं या स्कूटी भी ऑप्ट कर सकते हैं, या अपनी गाड़ी है तो ट्रैफिक जाम रहता है, पर रास्ते में आपको काफ़ी फूड पॉइंट, मैगी पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो सफ़र अच्छा रहता है। मतलब एक भावना है उस धाम के अंदर, बड़ी शांति है। बाकी मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। फिर लग गया जाम, अब जहाँ जाम लगा है लोकेशन बड़ी सही है, ऑल दो पे चढ़ रहे हैं, बट अच्छा है। और इट्स शोइंग नरीमन चौक 1 मिनट्स किल मी। जो पहले एक नए रूट से कवर किया था उसमें हमने समय बचाया, बट अब यहाँ वो समय लग जाएगा, कुछ कर नहीं सकते, चलते रहना पड़ेगा। है भाई ढाबा हाईवे के आसपास, हरियाणा पंजाब। खाना अच्छा है, उतना ही कॉस्टली भी है। यूजुअल हिसाब से लुक दिख रही है ढाबे की, उतना ही पाँच है। साफ सुथरी जगह बैठ के खाना खाओगे तो महंगा तो पड़ेगा। हेलो, देखो शाम का टाइम है और सूरज ढलता हुआ दिखेगा तुम्हें थोड़ा बहुत, ये बहुत अच्छा लग रहा है। Finally, I have reached Delhi. It will long many hours और बहुत लंबे जाम, बट हाँ ये व्यू जो है ये अच्छा है यार। देखो नारीमन पॉइंट है हल्द्वानी में, वहाँ पे करीबन 26-30 मिनट का जाम था। उसके बाद टोल पे 2-3 टोल हैं बड़े, उनके ऊपर ज़बरदस्त जाम। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं। अभी भी 33 किलोमीटर दूर है मेरी लोकेशन और 1 घंटा दिखा रहा है ये। अभी हम NH-24 पर हैं और ये सूरज बहुत खूबसूरत लग रहा है। मतलब आई डोंट नो व्हाट, क्या सेंस है इसमें नहीं है, बट इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। ऑरेंज कलर का भगवा, यहाँ पे भी भगवा छा गया, वाह। ट्रैफिक संडे के दिन भी काफ़ी ज़्यादा है यार, संडे को भी इतना ट्रैफिक है और लोग बदतमीज़ तो हैं। मैं पहले ही बता रहा था, इंडिया गवर्नमेंट वगैरह की वजह से पीछे नहीं, इंडिया अपने खुद के लोगों की वजह से पीछे है, दैट इज़ फॉर श्योर। मैं भी उनमें से। चलो जी, अब करते हैं इस यात्रा को समाप्त। वीडियो के लिए मेरी तो भी जारी रहेगी, क्योंकि दिल्ली दर्शन क्या ही कराने आपको, दर्शन लायक कुछ है नहीं दिल्ली में। ओके बाय, टाटा।